Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss the topic of electric field lines. In the previous video, we have seen the concept of electric field. Okay, so this electric field lines is obviously it is related to electric field. So if we have a positive charge, suppose plus Q, इसके surrounding space में, in this surrounding space, obviously this charge will produce an electric field. Okay, so how to detect the electric field? By using a test charge. Okay, so if I place a test charge over here, so suppose this is test charge Q naught, so this test charge will experience a force in this direction, and electric field intensity, it is force experienced per unit test charge. Okay, why it is experiencing a force in the radially outward direction? Because in the last class we have seen this test charge, it has got two properties. Okay, one is this test charge is very small, Q naught tends to 0, its magnitude is very small. The other thing is this test charge Q naught, it is a positive charge. Okay, it is a positive charge. Okay, so if I place a positive charge, this is a positive charge, so this positive charge is going to experience a repulsive force. It will be in the radially outward direction, so force is in the outward direction. Now see, in this expression, this is scalar, this is vector, this is vector. Now in between two vector quantities, if we don't have a negative sign, if we have a negative sign, that means two vector quantities are in opposite direction. If there is no negative sign, that means they have the same sign, so that means the two vector quantities are in same direction. This is a property of vectors. So here electric field intensity is in the direction of force, so that means the direction of electric field intensity, it will also be in this direction, in the direction of force. So at this point, the electric field intensity due to this positive charge, it is in outward direction, away from the charge. Okay, so this is one point of observation. The other point of observation is, what about the magnitude of electric field intensity? If this distance is r, okay, this distance is r, then the magnitude of electric field intensity at this point, it will be E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. Okay, this is the magnitude of electric field intensity. So this implies E is inversely proportional to r square. Okay, so that means as you are moving away from this charge, the magnitude of electric field intensity is decreasing. So that means near the charge, electric field intensity will be strong, it will be very strong, and as you move away, the strength of electric field intensity decreases. Okay, so अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, बाहर की तरफ है. मैं बोल रहा हूँ चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक हो जाएगा. सो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस चार्ज की जो सराउंडिंग स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा हूँ. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का मैप. ठीक है, एक तरह का मैप है. ठीक है, जो ये मैप बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है फॉर ए सिंगल चार्ज और ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और ये मैप किसने बताया था, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहले बताया था? दिस प्रपोजल वाज गिवन बाय माइकल फैराडे. माइकल फैराडे. ठीक है, सो माइकल फैराडे, he suggested that we can draw some set of lines. Through those set of lines, we can represent the electric field for a charge or a charge distribution. Electric field lines दिखने में कैसा होता है? ठीक है, वो देखते हैं. मान लीजिए कि you have a positive charge plus Q. ठीक है, अब हमको पता है कि for a positive charge, electric field intensity is always directed away from the charge. Okay. And for a negative charge, electric field intensity is directed towards the charge. Now for this positive charge, at this point, what will be the direction of electric field intensity? It is positive charge, so electric field intensity has to be directed away. So this is the direction of electric field intensity. Electric field intensity एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पे मैंने एक एरो ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे अगर है तो ऐसा होगा, यहाँ पे अगर है तो ऐसा होगा, यहाँ पे अगर है ऐसा होगा. अभी ठीक है. अच्छा, अब
इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन लिखता हूं तो यहां पे भी तो अवे ही होगा, ठीक है। अब ये अब मैं जब ड्रॉ करूंगा तो ये जो एरो है ना, वो एरो इससे मैं छोटा ड्रॉ करूंगा। क्यों छोटा ड्रॉ करूंगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r²। मतलब आप जब चार्ज से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, ठीक है। हम लोगों ने वेक्टर से पढ़ा था, लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो लेंथ भी तो डिक्रीज होगा, है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा एरो ड्रॉ किया, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा। बट ये जो छोटा ड्रॉ किया है ये इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब आप और दूर जाओगे तो और छोटा छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब एज यू आर मूविंग अवे द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन यहाँ पे एक ही है, बट एज यू आर मूविंग अवे द लेंथ ऑफ द वेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ओके, सो नाउ इफ आई कनेक्ट ऑल दीज वेक्टर्स बाय लाइन, ठीक है। अब ये अगर ऐसा हो गया, मैं कनेक्ट कर दूं तो ये जो लाइन है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज का ड्रॉ किया है और सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक से ज्यादा चार्ज हो गया तो कैसा होगा वो मैं भी दिखाऊंगा, बट सिंगल चार्ज के लिए ऐसा होगा। तो ये जब मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे लाइंस किसके लिए ड्रॉ किया है? पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। मगर अब आपके पास एक डाउट आएगा कि हम लोगों ने पहले जब ड्रॉ किया था एरो, एक लंबा एरो था, फिर एरो का लेंथ डिक्रीज हो रहा था, तो हमको पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम हो गया। बट जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंटिन्यूअस लाइन हो गया, तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि वो लूज हो गया, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है। अब हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे कि जैसे यहाँ पे अगर देखें चार्ज के पास, तो यहाँ पे लाइन का सेपरेशन कम है, यहाँ पे लाइंस पास पास है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे डाइवर्स कर रहा है, मतलब एज यू आर मूविंग अवे द सेपरेशन बिटवीन द लाइंस इज इंक्रीजिंग। सो जहां पे लाइंस पास पास होंगे वहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग है। अब देखिए ये चार्ज के पास तो लाइंस पास पास है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगा। और जैसे एज वी आर मूविंग अवे यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी से पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर एरिया देखते हैं तो वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितने हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो वो जो मैंने कर्व जो मतलब पहले जो एरो था स्पेसिंग में, उसको मैंने जब लाइन से कनेक्ट कर दिया तो इंफॉर्मेशन भी लूज नहीं हुआ है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये मैंने ड्रॉ किया था पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कुछ। ड्रॉ किया ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसके लिए है? नेगेटिव चार्ज के लिए। बट ये आइसोलेटेड है, मतलब इस सिस्टम में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
अब यहाँ पे एक आपको जो अगर डाउट होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने 8 लाइन ड्रॉ किए और किसी ने ड्रॉ किए पॉजिटिव चार्ज के लिए 10 लाइन, किसी ने 20 लाइन, तब तो ये अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बाय डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो वो जो डेंसिटी है, ठीक है, वो हर किसी के लिए सेम ही होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। वो अभी पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक चीज हमको जानना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि एक स्फेयर है, ठीक है। तो स्फेयर में एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। एरिया मान लेते हैं डेल्टा एस। तो ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा, दिस एंगल डेल्टा ओमेगा, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब ये एक 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये मतलब कैसा होगा, ये कौन होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप मैं सेंटर ऑफ स्फेयर हूँ और ये एक सरफेस है, सरफेस में ये एरिया लिया है, तो ये जो एरिया यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल, ठीक है। दैट इज गिवन बाय डेल्टा ओमेगा। तो इसका जो रेडियस है वो अगर मान लेते हैं आर है, तो ये जो डेल्टा ओमेगा होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज हाउ सॉलिड एंगल इज डिफाइंड, ओके। सो नाउ वंस वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, we can understand the concept of electric field lines and electric field intensity. मान लीजिए कि यहाँ पे you have a charge और ये कुछ electric field lines ऐसे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉ किया है ये मैंने 3D में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पे एक दूसरा एरिया ले रहे हैं, ठीक है। ये जो एरिया है इट इज एट डिस्टेंस r1 और ये जो एरिया है इट इज एट डिस्टेंस R2। अब ये ऑब्वियसली ये जो एंगल है इसके लिए और इसके लिए तो एंगल तो सेम होगा, ये जो सॉलिड एंगल होगा ये पूरा एंगल, ये एंगल मान लेते हैं डेल्टा ओमेगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था डेल्टा ओमेगा होता है इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब इस पार्ट के लिए अगर एरिया में देखूं तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर होगा, एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और इस पार्ट के लिए अगर देखूं तो डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे इस एरिया से 3 लाइन निकल रहे हैं, इस एरिया से ये जो एरिया है यहाँ से 3 लाइन निकल रहा है, यहाँ से भी 3 लाइन निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 ड्रॉ किया है इसलिए 3 निकल रहे हैं, मैं 4 ड्रॉ करता तो 4 होते, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n लाइन्स हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस एरिया के लिए देखें, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, ये जो क्वांटिटी है इसको इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया n डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस को मैं n बोल रहा हूं, तो एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए अगर देखें तो डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसके लिए देखें, इस एरिया के लिए, सो इट इज n डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो क्या है, ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से हम लोगों ने क्या पता लगाया था, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से हम लोगों ने बोला था कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, करेक्ट। और अगर डेंसिटी कम है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से अगर कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, इन दोनों चीजों में, दोनों इक्वेशन में n और डेल्टा ओमेगा एक ही है, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे देखिए हमको मिल रहा है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि n और डेल्टा ओमेगा दोनों में सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट ये जो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस है ये तो E है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है तो E ज्यादा है,
ठीक है, तो इसका मतलब हमको E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर मिला, ये तो हमको पहले मिला था फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। E is inversely proportional to R square. That means as you are moving away from the charge, the density of field lines is getting decreased. Density of field lines decrease हो रहा है, इसीलिए intensity of electric field भी decrease होगा, ठीक है। So क्योंकि देखिए अब जब दूर जाओगे तो R2 का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो R2 का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो R2 स्क्वायर और भी डिक्रीज होगा, तो उसका डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस विल डिक्रीज। तो इसका मतलब एज यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हो गए वहां डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर को होंगे वहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ये हो गया विद रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली साइन उल्टा है, ठीक है। और इस सिस्टम के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, मतलब यहां से यहां पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन को कैसे मार्क करते हैं, विजुलाइज करने के लिए बोल रहा हूं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखिए, ठीक है। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, टेस्ट चार्ज क्या था, स्मॉल, उसका मैग्नीट्यूड छोटा था और वो एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये उसको धक्का मारेगा, ये उसको खींचेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ रखूँ तो ये उसको धक्का मारेगा, ये धक्का मारेगा तो ये तो खींचेगा ना, तो ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ये ऐसा जाएगा, यहाँ से ये ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ रखूंगा तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ रखूंगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा गया, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। अब देखिए मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइन ही नहीं है, लाइन मतलब हम समझते हैं लाइन मतलब ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कर्व भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जो एक्चुअली हम जो बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली वो एक कर्व है, ठीक है। वो एक कर्व है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमको डायरेक्शन कैसे मिल रहा है, कर्व है ना, ठीक है। तो हम कर्व पर डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, बाय ड्राइंग ए टेंजेंट। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब टेंजेंट का डायरेक्शन इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस साइड जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा उसी डायरेक्शन से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता चलेगा। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट में चाहिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इस पॉइंट में चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट में इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट at any point on the electric field line, if you draw a tangent, the tangent will give you the direction of electric field intensity, ठीक है। ये हो गया कि how to find the direction of electric field intensity from the electric field lines, okay। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, on the basis of this how to define electric field lines, ठीक है। we will say that electric field lines is the pictorial representation of the electric field surrounding a charge or a charge configuration, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व्स सच दैट, जैसे आप इलेक्ट्रिक कर्व मिलर सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, नाउ फ्रॉम ऑल दिस व्हाट आर द कंक्लूजंस, मींस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, दे विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि अगर चार्ज फ्री रीजन है, मतलब यहां पे जैसे एक चार्ज है, ठीक है, तो ये जो लाइंस है ये तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा टिल इंफिनिटी, कंटिन्यूअस कर्व होगा। तो ये कंटिन्यूअस कर्व होगा विदाउट एनी ब्रेक,
ठीक है। विदाउट एनी ब्रेक का मतलब क्या है कि देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब कि R इक्वल टू जब इंफिनिटी होगा तब E इक्वल टू 0 होगा। मतलब E का वैल्यू 0 कब हो सकता है? E का वैल्यू 0 हो सकता है एट R इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिफाइंड, मतलब देखिए अगर मैं देखता हूं R इक्वल टू 0 तो E इक्वल टू होगा इंफिनिटी, ठीक है। मतलब E का वैल्यू हम लोग R इक्वल टू 0 पे हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। और R इक्वल टू इंफिनिटी पे E का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। सो बिटवीन दिस मतलब एट द साइट ऑफ द चार्ज R इक्वल टू 0 मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हो? जहां पे चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां डिफाइन कर रहे हैं? इन द रीजन बिटवीन द चार्ज एंड इंफिनिटी। तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सडनली 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों रीजन के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व होगा विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। बट अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो ये यहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो इस ऐसा यहाँ पे एक ऐसा रीजन आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि ये दोनों चार्ज का आइडेंटिकल होगा, तो बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा वहाँ पे तो लाइन नहीं हो सकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा वहाँ पे तो लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब अगर सिंगल चार्ज है, ये तो चार्ज फ्री रीजन नहीं हो रहा, एक चार्ज है दूसरा भी चार्ज है, तो चार्ज फ्री रीजन बोला मतलब सिंगल चार्ज, दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी ए कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज सी इफ सपोज ये एक लाइन कर्व हो गया और ये कर्व हो गया, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इस पॉइंट में इस कर्व के लिए टेंजेंट इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो ये टेंजेंट हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा हो गया, इस कर्व के लिए और एक टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट इस साइड जाएगा, ये हो गया E2, दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो यू कांट हैव मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम लोकेशन। नेट फील्ड का डायरेक्शन सेम लोकेशन में दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि जो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट नेट फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। वो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा था, ये टेंजेंट नेट फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो नेट फील्ड किसी एक पॉइंट में दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा चीज क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ जा रहा है, वापस तो नहीं आ रहा, ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। They start from positive charge, they terminate on negative charge. They don't form closed loop, ठीक है। तो ये जो closed loop form नहीं कर रहा है, this shows the conservative nature of electric field, ठीक है। इसका चीज हम लोग डिटेल में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। खाली ये ध्यान में रखो कि मतलब कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड में भी पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हमको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। कि मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज 0, ठीक है। यहाँ पे चार्ज देखिए, मैंने क्या बोला था कि ये जो लाइन कैसे ड्रॉ किया था, बाय मूविंग ए टेस्ट चार्ज। तो यार टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मैंने रख दिया, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको वहां से वहां भेजा। तो अगर क्लोज लूप होना है तो चार्ज को वापस भी आना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज वहां से वापस आएगा क्या? टेस्ट चार्ज तो यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वापस तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इट कैनॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स cannot form a closed loop and this shows the conservative nature of electric field, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछते हैं why electric field lines cannot form closed loop, तो रीजन होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ठीक है। बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स cannot form closed loop, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। होप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके क्लियर हो गए, और ये जो मैंने जो भी वीडियो बनाया है ये एंटायरली इट इज बेस्ड ऑन और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।